अगर आप एक स्ट्राइक प्राइस में लिए हैं, अगर ये मूव करेगा, नहीं तो नहीं मूव करेगा, नहीं तो अपोजिट साइड में मूव करेगा जहाँ पे आपका करेक्शन हो रहा है, मतलब स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। अगर स्टॉप लॉस हिट भी नहीं हो रहा है 2 दिन में या मैक्सिमम 3 डेज में, ट्राई टू वाइंड इट अप कि बस ये ट्रेड मैंने लिया था, 2-3 दिन नहीं चला, आई एम आउट. There's no point of staying it for a long period of time. So never ever put any kind of option premium for a long period of time, be it a month or whatever. I'll tell you, even if you want to re-enter, you can re-enter in a different strike price, but not at the same strike price. Same stock में दूसरा strike price में re-enter कर सकते हो. Yes. अगर view आपको बन रहा है फिर से. Hypothetically, one of the things that I'll come to that in the second part of it. Yeah. So first condition is not to stay put for long. You must know when to trade, when not to trade. आपको हर टाइम पे हर दिन नहीं ट्रेड करना है, हर जोन में नहीं ट्रेड करना है. There are two things in option buying. It is not enough for you to know that there is a trend that is there. The trend has to back it up, have the backing of a momentum. Okay. अगर वो momentum नहीं है, even if the trend is uptick, then the prices आ जाएंगे नीचे, premium थोड़ा थीटा डिका आ जाएगा, and everything that will be there. Right. So you have to bring that momentum into your side. So have the combination of trend and momentum. कहीं पे भी एक एंगल अगर नहीं रहेगा तो फिर इंजन नहीं चलेगा आगे. So हमें momentum को भी साइड में लाने के लिए होगा. So yeah. So second, that is what I was talking about, to trade only in the trending market. Market sideways है, particular stock move नहीं कर रहा है, एक DATR concept है, Daily Average True Range, उसको meet नहीं कर रहा है, 10% के movement में stop बंद हो जा रहा है, you know कि उसमें momentum नहीं है, even if it is looking good or looking bad. So आप call options लीजिए, put options लेके, maybe it will not give you the desired kind of output. So only trade in the trending market. Stick to ATMs for higher POP. ATMs is what at the money call for the viewers, and higher POP is probability of profit. Most of us we get into the trading, मैंने भी किया है ऑप्शन बाइंग में. जैसे 3000 का HDFC चल रहा है, हम बोले कि मैं 3300 का कॉल ले लेता हूँ, इस महीने भी 3300 चला जाएगा, राइट. उसका लेने का रैशनल ये है, 3300 का कॉल जो कि मे बी 10 रुपये होगा, 3000 का कॉल मे बी 100 रुपये होगा हाइपोथेटिकली, मे बी 80 रुपये होगा. Because it is 10 rupees, they will go for that, right? And so each and every methods have different rules of the game. The rules of the game for option buying, you have to stick to 40 to 60 delta. I'll talk about what is delta. Yeah. But at the same time, 40 to 60 delta, that is where the maximum probability for me to make money. मैं 10-20 डेल्टा पे कभी बाय नहीं करूंगा. जस्ट टू लेट यू नो व्हाट इज अ डेल्टा. डेल्टा इज लाइक आपको अंडरलाइंग अगर 100 मूव कर रहे हैं, हाउ मच द प्रीमियम इज मूविंग, दैट इज काइंड ऑफ गेटिंग कॉन्फिगरेबल एज द डेल्टा थिंग. सो मैं कभी भी 40 से नीचे का डेल्टा बाय नहीं करूंगा, नो मैटर व्हाट. ओके राइट. सो स्टिक टू द ATMs फॉर हायर POP. 80 डेल्टा क्यों नहीं बाय करेंगे फिर? या गुड क्वेश्चन. आई थिंक 80 डेल्टा में बाय करने का इशू ये है, higher the delta, higher the character of the premium towards the underlying. Right. Correct. 90 डेल्टा हो गया तो पूरा का पूरा अंडरलाइन ही बन गया. राइट. फर्स्ट इशू इज दैट की लिक्विडिटी. आप जिस प्राइस में बेचना चाहते हो, मे नॉट बी दैट बी ए सेलर फॉर दैट प्राइस, बायर फॉर दैट प्राइस, राइट. सेकेंड, वो स्टॉप लॉस. सो अगर जैसे बैंक निफ्टी में मैं 80 डेल्टा लूंगा, राइट, बैंक निफ्टी अगर 100 पॉइंट गिर रहा है, वो प्रीमियम भी 80 पॉइंट गिरेगा, करेक्ट. मैं जो स्टॉप लॉस है उसको भी मैनेज नहीं कर पाऊंगा. सो दैट इज व्हाई नॉट टू मच इन द मनी, डीप इन द मनी काइंड ऑफ थिंग. I would like to keep to ATM 40 and maximum on the higher side maybe 60 kind of delta, not beyond that. समझ गया. एक छोटा सा मैं दोस्तों, अगर वो डेल्टा का एक्सप्लेनेशन आप अलाउ करें तो मैं बता दूं. डेल्टा मतलब जैसे इन्होंने कहा कि प्रीमियम कितना मूव करता है अंडरलाइन के मूवमेंट के हिसाब से. तो ATM जो है उसमें कॉल का डेल्टा होता है 0.5. मतलब अगर प्रीमियम अंडरलाइन 100 रुपया मूव किया तो ये ATM कॉल ऑप्शन भी 0.5 मतलब 50 मूव करेगा. तो जितना आप इन द मनी जाएंगे उतना डेल्टा 1 की तरफ जाता है, जितना आप आउट ऑफ द मनी उतना डेल्टा कम होता जाता है. तो व्हाट ही इज सेइंग दैट डेल्टा अगर आप ऑप्शन बायर बन रहे हैं तो इन द मनी के आसपास, मतलब 0.4 से 0.6 का डेल्टा के आसपास ही आपको बाइंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए. नेक्स्ट वन इज बीवेयर ऑफ थीटा एंड IV. थीटा तो सबको पता है, एवरीबॉडी इज हैविंग ए PhD डिग्री इन थीटा, सो आई डोंट नीड टू टॉक अबाउट थीटा. बट अगर IV ज्यादा है, इंडिया विक्स पकड़ लीजिए, अगर 30 से ज्यादा है, देन ऑप्शंस का वोलेटिलिटी काफी, प्रीमियम का वोलेटिलिटी काफी ज्यादा रहेगा. सो लेट्स से लास्ट ईयर का कोरोना, जहाँ पे विक्स चला गया था 80 के पास, उस टाइम पे इवन इफ योर डायरेक्शन इज करेक्ट,
डेल्टा आपके साइड से ही मूव हो रहा है, बट बिकॉज ऑफ द प्रीमियमनेस दैट हैज बीन इन्फ्लेटेड बिकॉज ऑफ आईवी, विल नॉट बी एबल टू मेक मनी थ्रू ऑप्शन बाइंग. सो आईवी जब भी विक्स 30 के ऊपर जाता है, 25 के ऊपर जाता है, ट्राई टू रिड्यूस पोजिशंस. वोलेटिलिटी एक्सपेंशन इज गुड फॉर बायर, बट आप उससे पहले अगर एंट्री कर चुके दैट इज गुड, बट एक्सपेंशन होने के बाद अगर आप एंट्री करना चाहते हो एंड यू वांट टू मेक मनी, वेरी डिफिकल्ट. सो काफ़ी टाइम ऐसा होता होगा, लोग ऑप्शन बाय करेंगे, अंडरलाइंग इज मूविंग, प्रीमियम इज नॉट मूविंग. दे नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द आईवीपी, व्हाट इज द आईवीआर. IV में कितना है, अगर IVP IVR is more than say 50, most of the chances the delta will not move the way it ought to be moving. So वो एक चीज हमें देखना चाहिए. And a barometer is that कि just check what is the VIX. Below 20 it is all fine. 25 से फिर हमारा प्रॉब्लम ज्यादा ऊपर जाने का चांसेस रहेगा. तो इंडिया विक्स से 15 से 25 का रेंज ठीक है. 25 is on a higher side, but 15 से 20 is good. That is a decent. 20 अगर रेंज है तो आप उसमें ऑप्शन बाय कर पाओ. Not that कि उसके बाद नहीं कर पाएंगे, but वो बाय करने से, लेट्स से हाइपोथेटिकली कोरोना मार्केट में आई हैव ट्रेडेड फॉर फ्यू टाइम्स, लेट्स से बैंक निफ्टी फेल डाउन बाय 500 पॉइंट्स, राइट. मेरा आधी मनी मुझे 250 रुपये देना चाहिए, 0.50 डेल्टा, बट बिकॉज सेलर को ये पता है कि कल अगर गिरेगा ये प्रीमियम भी इतना बढ़ने वाला है, सो दे हैव ऑलरेडी सेलिंग द काउंटर एट मच हायर प्राइस. सो अंडरलाइन तो 500 पॉइंट गिर गया, बट जो प्रीमियम बढ़ेगा वो 30, 40, 50 पॉइंट, 60 पॉइंट उस टाइप का. इट इज नॉट हैव द डिजायर्ड इफेक्ट इन अ नॉर्मल सिचुएशन. सो बी ऑलवेज बी अवेयर ऑफ द काइंड ऑफ नो ए थीटा एंड फॉर द काइंड ऑफ नो आईवी थिंग. बट इसमें एक बात है कि आप बोल रहे हैं स्टॉक्स के अंदर में अगर काम करें तो हर स्टॉक का आईवी अलग अलग है. एग्जैक्टली. तो हम बेंचमार्किंग तो कर नहीं सकते कि 20% आप एक सबके लिए तो यूनिफॉर्म हो नहीं सकता है, राइट. तो इसका मतलब हर स्टॉक का मेरे को पुराना IVs देखना होगा और उसके बाद that we can check that IVP IVR for each of the stock we can check. मतलब काफी सारे साइट्स हमें देते हैं वो डेटा, बट एट द सेम टाइम मेरा बैरोमीटर रहेगा कि इंडिया विक्स कितना में है. अगर वो जितना रहेगा ऊपर, इट विल पर्कुलेट डाउन ईच ऑफ द काइंड ऑफ नो स्टॉक एंड स्ट्राइक प्राइस काइंड ऑफ थिंग, राइट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ इट, डिफाइंड रिस्क एंड लेवरेज. द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिस्क फॉर एन ऑप्शन बायर इज ऑलवेज नोन. कल को एज आई सेड कुछ भी हो जाए, मुझे पता है कि दिस इज द मैक्स एट स्टेक, आई कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट. एंड दैट इज वन ऑफ द यूनिक थिंग्स दैट इज देयर फॉर एज एन ऑप्शन बायर हु कैन बेनिफिट, अगर वो उसको पता है कि मेरा रिस्क कितना है, राइट. सो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, चेस डेल्टा एंड गामा. डेल्टा एंड गामा हैज दैट काइंड ऑफ नो माइलेज व्हिच कैन ओवरपावर थीटा एट एनी गिवन डे. अगर आपको ट्रेंड एंड मोमेंटम पता है कि किस साइड में जा रहा है, कैसे जा रहा है, नाउ वी कैन ऑलवेज डिस्कस कि मुझे वो कैसे पता होगा ट्रेंड मोमेंटम. लेट्स कम टू ए पॉइंट जहाँ पे आपको पता है कि ट्रेंड मुझे ये लग रहा है, मोमेंटम मुझे ये लग रहा है, देन कैन वी यूज ऑप्शन बाइंग फॉर मेकिंग प्रॉफिट. सो वी आर नॉट डिस्कसिंग राइट नाउ कि मुझे वो कैसे पता चलेगा ट्रेंड मोमेंटम के लिए, दैट वी विल डिस्कस. बट एट द सेम टाइम लेट्स से यू आर कंक्लूजन कि कल निफ्टी लेट्स से 100 पॉइंट गिर रहा है हाइपोथेटिकली. अगर 100 पॉइंट गिर रहा है, करेक्शन हो रहा है, एंड लेट्स से अभी वीकेंड है, सैटरडे संडे, सब लोगों को पता है कि सैटरडे संडे में थीटा डी का होता है, तो मेरा ऑप्शन में बाइंग तो प्राइस नहीं बढ़ेगा, बट दैट इज नॉट द केस. द डेल्टा एंड गामा विल ओवरपावर द थीटा डी के जो भी होगा. थीटा इज लाइक यू नो थोड़ा बहुत कॉस्टिंग है फॉर कैरिंग दैट कॉल पुट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, बट दैट कॉस्टिंग इज यू नो कॉस्ट ऑफ डूइंग ऑप्शन बाइंग. आपको उसको इनकर करना ही पड़ेगा टू हैव ए मच बेटर काइंड ऑफ नो आउटपुट इन टर्म्स ऑफ रिटर्न. सो अगर मैं थीटा के बारे में सोचूं, आई कैन नॉट रियली हैव दैट मच ऑफ क्वांटिटी इन ऑप्शन बाइंग एंड थिंग्स लाइक दैट. इट इज व्हेन आई लूज, इट इज नॉट अबाउट थीटा, इट इज अबाउट डेल्टा ब्लीड. अगर मेरा सेंस ऑफ डायरेक्शन हैज गॉन रॉन्ग, द इंस्ट्रूमेंट द अंडरलाइंग द वे आई वाज थिंकिंग इस हिसाब से जाएगा एंड इट हैज टर्न बैक, लेट्स से इट इज नॉट गोइंग दैट डायरेक्शन. दैट इज व्हाई आई विल बी लूजिंग मनी. As a buyer, one Greek that I'm least bothered about is theta. I'll be rather bothered about IV, how the IV is playing. So the delta bleed is more hurting for a buyer than the theta, and that is what people do not realize, and they only talk about कि theta decay हो जाएगा. Theta decay हो जाएगा, सही बात है. The fair point. There are instances in the past I have taken a monthly call on a Wednesday. Ultratech, Yes Bank, quite a few scripts for a monthly expiry. Because premium was less, because कल को ही expiry है, and those premiums which I took Yes Bank around 7-8 rupees, open at 32 rupees. Ultratech I bought around 66, open at 200 rupees, because of the fact that they had a momentum trend result आया हुआ था. So all I'm trying to say,
इट इज नॉट द वेडनेसडे फैक्टर कि कल तो एक्सपायरी है, पैसा हमारा चला जाएगा. नो, दैट इज नॉट द थिंग. बट यू हैव टू हैव दैट मच ऑफ कन्विक्शन टू कैरी ए मंथली ऑप्शन ऑन ए वेडनेसडे एंड मेक मनी. So until unless you do not have that kind of bend of mind ki nahi yaar, I don't have to bother about theta, all I need to focus on the strength. If we focus on the strength, we don't have to bother about the weakness. Theta is weakness, but I need to more concerned about कि मैं जो sense of direction में पकड़ रहा हूँ सही है या गलत है, वो एक बार पता चल जाएगा, then it doesn't really matter. सही बात है दोस्तों. ये बात थोड़ी डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा वाली आई है. तो अगर आप नहीं समझते हैं सब, तो मैंने अपने लर्न टू ट्रेड सीरीज में ऑप्शंस पे 8 वीडियो बनाए. बड़ा सिंपल तरीके से मैंने समझाया है हिंदी में. तो मैं इस वीडियो के नीचे में उसका प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा. आप देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा. अच्छे से समझाया मैंने. और अगर आपको इंग्लिश में सीखना है तो elearnoptions.com में फ्री हमने ऑप्शंस का बेसिक ट्रेनिंग पूरा दे रखा है. इट्स फ्री. तो जिनको देखिए ये सीखना तो पड़ेगा. If you want to trade options, और ये जो भाई साहब है ये गामा थीटा, इनसे आप घबराएंगे तो काम नहीं चलेगा. इनसे आपको दोस्ती करनी पड़ेगी. तो प्लीज गो एंड लर्न अबाउट देम, then you will be able to understand things properly. So long options give you wealth. These are the terms and conditions. Just keep in mind कि हमें ये नहीं करना है और ऐसे ही करना है. Then it will be, then the game will start. Then real charm of the option buying will start. Just to kind of translate all of it in a manner in which people will be able to relate to it, I just created this slide for fun. So इस स्लाइड का दोस्तों, ये जो स्लाइड है ना, इसका प्रिंट आउट रख लीजिएगा. अगर आप एक्चुअल में ऑप्शंस बाइंग करना चाहते हैं ना, तो आपका डेस्क पे ना इसका कलर प्रिंट आउट लेके लगा लीजिएगा. इतना प्यारा स्लाइड इन्होंने बनाया है ये.